Assalamu alaikum, and these are the papers related to factorization, and these are MCQs over here. We are going to start from 2024. Okay, the factors of an expression are option A, B minus C and A minus B, option B, B minus C and A plus B, option C, B plus C and A minus B, and D is B plus C and A plus B. What will you do here? Just first let me write over here A, B minus C minus B, C minus B. Okay, these two brackets are not same because there is the sign of B is positive and sign of C is negative. Here the sign of C is positive but the sign of B is negative, so we will write it like this: B minus C. I will take minus as common over here like this from here, that is minus C plus B. Okay, to make C as negative and B as positive, I have taken out minus as common, negative sign, and this is A B minus C, and this sign and this sign will be multiplied, that would be plus B, and that would be B would go here and C would go there, that is B minus C, and this is equal to, now both the brackets are same, can be taken out as common, and A plus B. So B minus C and A plus B, this is here B. Okay, the expression xy minus 5y plus 4x minus 20 is equal to, you need to factorize it, okay, by grouping. So let's see, if I will take y as common from here, that would be x minus 5. Okay, and so I can write it like this: xy minus 5y plus 4x minus 20. Okay, now I will take y as common, that is x minus 5, plus 4 as common, x minus 4 5s are 20. Okay, and that would be, we can take out x minus 5 as common, and that would be y plus 4. So this is x minus 5 and y plus 4. B is correct option. Okay, now let's go towards next. This is the one of the factors of 2 minus 16 x cube is. Okay, so how would we solve it? We will take out 2 as common. Okay, that is 1 minus 8x cube. ठीक है, and then what will we do? 2 as common, and if I will open it, that is 1 minus 2x, the formula of a cube minus b cube. Okay, and then a minus b, a square plus ab plus b square, 4x square. So if I want to find out any one of the factor, 2 is the factor, this is the factor, and this is the factor. So this is here 1 minus 2x, B is the correct option. So this is question number 26. If x minus b is a factor of a polynomial px, and then PB is equal to, you need to find out the value of PB. PX is a polynomial and x minus b is a factor. So we will apply factor theorem over here. तो ये बात समझ लीजिए कि अगर x माइनस बी इज़ अ फैक्टर, अगर x माइनस बी फैक्टर हो तो हम पहले तो इक्वेशन लिख लेते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू x माइनस बी, इफ़ x माइनस बी इज़ अ फैक्टर, ये क्यू एक्स जो है ये आपका कोशेंट है, ठीक है, और यहाँ पर जो आपका रिमाइंडर होता है ये रिमाइंडर थ्योरम है, लेकिन जब x माइनस बी इसमें आपका फैक्टर बन जाएगा तो आपका जो रिमाइंडर है वो ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा. सो फैक्टर थ्योरम के अंदर आप इसको इस तरह से चेंज कर लेते हो, रिमाइंडर ज़ीरो हो जाता है, इसलिए इसको हम लिखते नहीं हैं पी एक्स. ओके ओके, क्यू एक्स विल गो अप and x minus b means here you are having x minus b. If x minus b is a factor, now it will multiply with qx. x minus b जो है वो qx से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, और यहाँ आपका सॉल्व होने के बाद जो रिमाइंडर आता है वो ज़ीरो आएगा. ओके, रिमाइंडर वुड बी ज़ीरो.
तो ये वाली फॉर्म होती है इसकी। तो यहाँ हम क्या करने जा रहे हैं, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस बी इंटू क्यू एक्स। तो यहाँ पर मैं लिखूंगी पी ऑफ बी, वी नीड टू फाइंड आउट पी ऑफ बी, सो दैट वुड बी इक्वल टू बी माइनस बी, ओके, एंड क्यू ऑफ एक्स। ये कोशेंट है आपका, जो कि एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक है। तो b माइनस बी वुड बी इक्वल टू 0 मल्टीप्लाइड बाई क्यू एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ 2x क्यूब माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय दिस, देन द रिमाइंडर विल बी। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट द रिमाइंडर, ठीक है। हमें क्या चीज़ मालूम करनी है, रिमाइंडर मालूम करना है। अगर आप 2x क्यूब माइनस 1 को डिवाइड करें x प्लस 1 से, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस पॉलिनोमियल क्यूबिक पॉलिनोमियल इज पी एक्स, आप इसके बराबर इसको सपोज कर लोगे 2x क्यूब माइनस 1, ठीक है। इफ़ आई एम गोइंग टू डिवाइडेड बाय x प्लस 1, तो हम x प्लस 1 की वैल्यू 0 रख लेते हैं, ठीक है। तो x इज इक्वल टू माइनस 1 हो जाता है। नाउ आई विल रिप्लेस द वैल्यू ऑफ x बाय नेगेटिव 1, ठीक है। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, और ये वैल्यू जो होती है ये रिमाइंडर के इक्वल होती है, ओके। रिमाइंडर के इक्वल होती है, तो हम इसको कैसे लिखेंगे, 2x क्यूब। यहाँ क्या था आपके पास, p ऑफ नेगेटिव 1 जब आप इसमें पुट करोगे तो दैट इज नेगेटिव 1 क्यूब माइनस 1, दैट इज माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये मल्टीप्लाई होकर माइनस 2 कर देगा। माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव 3। सो योर आंसर इज नेगेटिव 3। रिमाइंडर जो है वो इस सूरत हाल में आपका नेगेटिव 3 आएगा। वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल, दोबारा फैक्टर की बात हो रही है तो वी विल अप्लाई फैक्टर थ्योरम, ठीक है। पॉलिनोमियल पी एक्स इज वन ऑफ द फैक्टर, इसमें हमें फैक्टर निकालना है, ठीक है। तो ये लिखा हुआ क्या है भला, ये है पी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 whole square minus 4, okay. So I will open it, that is x square minus 2x minus 1 minus 4, and that is equal to x square minus 2x plus minus 5, okay. So कैसे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, 5 1 ज़ार 5, यहाँ आपके पास इसका कोई भी फैक्टर्स बन नहीं रहे हैं डायरेक्ट, कि आप 5 को जो है वो इस तरह ब्रेक करो कि आपके पास 2x आ जाए। लेट मी चेक वंस अगैन, एक्स स्क्वेयर माइनस 2x प्लस 1, दैट वाज प्लस 1, सो व्हेन यू विल डू इट दैट इज माइनस 3, ओके। थोड़ा सी मिस्टेक थी, दैट वुड बी नेगेटिव 3 आ गया आपके पास। नाउ यू कैन डू इट, ओके। हाउ विल यू डू इट, अगर मैं इसके फैक्टर्स बनाना चाहूँ तो कैसे बनेंगे, मिडल टर्म ब्रेक से डायरेक्ट बन सकते हैं। तो दैट इज माइनस 2x एंड दैट इज माइनस 3x प्लस x माइनस 3, ओके। सो ये हमने मिडल टर्म ब्रेक की है 2x को, सब बच्चों को पता है कि ये कैसे ब्रेक किया गया है, ठीक है। 3 1 ज़ार 3, दैट इज़ 3 को मैं यहाँ करके दिखा देती हूँ, दैट इज़ 3 इज इक्वल टू 1 इंटू 3। तो 3 और 1, 3 में से 1 को माइनस करो तो मिडल टर्म बन जाती है, 2 आ जाता है, ठीक है। तो आई कैन राइट इट लाइक दिस, मैं यहाँ लिखूँगी माइनस 2 था हमारे पास, तो मैं यहाँ लिखूँगी कि माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 3 आ गया आपके पास, और प्लस 1 आ गया, ठीक है। तो इससे आपके पास माइनस 2 आ जाता है, तो आई हैव पुट इट ओवर हियर, ठीक है। ये इस तरह से सॉल्व हुआ है। मिडल टर्म ब्रेक यकीनन आपको आनी चाहिए, यू मस्ट हैव ग्रेट प्रैक्टिस ऑफ इट, ठीक है। x माइनस 3 आ गया, प्लस 1 x माइनस 3, तो दैट इज x माइनस 3 विल बी टेकन आउट एज कॉमन एंड x प्लस 1। सो वन ऑफ द फैक्टर इज या तो x प्लस 1 होगा या x माइनस 3, तो यहाँ आपके पास x प्लस 1 यहाँ मौजूद है, ठीक है। तो 2023 पे चले जाते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ a माइनस 1, a क्यूब माइनस 1 एंड a स्क्वायर प्लस a प्लस 1 विल बी, सो आई नीड टू राइट इट लाइक दिस। इसको हम इस तरह लिख लेंगे, a क्यूब माइनस 1 एंड a स्क्वायर प्लस a प्लस 1, दीज आर 3 फैक्टर्स एंड वी आर गोइंग टू एक्सपेंड इट टू गेट द वैल्यू, द प्रोडक्ट। अब हम इसको प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, यहाँ हमारे पास a माइनस 1 है, ओके, a minus 1 and I will write it with this, ठीक है। यहाँ अगर आप इसको गौर से देखें तो कौन सा फॉर्मूला बन रहा है भला, दैट इज द फॉर्मूला ऑफ a क्यूब प्लस 1, ओके, a क्यूब प्लस 1। सो आई विल राइट इट over here. You need to get by heart all the formulas.
Okay, so this is a difference of two squares. What will you do here? You will write it like this: a cube whole square minus 1 whole square. Okay, so that is a raised to the power 6 minus 1. This is the correct option. The complete factorized form of the expression will be, okay, we need to factorized form, we need to change it in फैक्टराइज्ड फॉर्म. ठीक है, अभी ये फैक्टर्स में नहीं है. आपको नज़र आ रहा है पॉजिटिव नेगेटिव प्लस माइनस यहाँ हो रहा है, फिर ये यहाँ आ रहा है. अगर कोई ये कह दे कि ये दो अलग अलग फैक्टर्स हैं तो दैट वुड बी रॉन्ग. ये फैक्टर्स नहीं हो सकते, इसलिए कि इससे पहले ये देखिए यहाँ ये टर्म्स ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही हैं. अगर सिर्फ प्रोडक्ट फॉर्म में होता तो वो फैक्टर्स होते. तो अब हमें इसको कम्प्लीटली फैक्टराइज करना है. तो x प्लस वाई माइनस एक्स माइनस वाई x प्लस वाई. वॉट वुड आई डू ओवर हियर? इसको भी मैं ब्रैकेट में ले लेती हूँ. तो एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया. यहाँ अगर आप देखें तो x प्लस वाई इज़ कॉमन. ठीक है, x प्लस वाई को मैंने कॉमन निकाल लिया. अब इस पोर्शन में क्या बाकी बच गया? 1 बाकी बच गया. और इस पोर्शन में क्या बाकी बच गया? x माइनस वाई बाकी बच गया. ओके, सो आई विल राइट इट लाइक दिस एंड दैट वुड बी x प्लस वाई एज इट इज़. एक फैक्टर ये है और दूसरा फैक्टर हमारा माइनस माइनस प्लस y. Okay, so where it is here. D is the correct option. Now go towards next. The expression can be expressed as, ठीक है, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है 1 अपॉन पी रेज टू द पावर 4 2 अपॉन पी स्क्वायर. वी नीड टू फैक्टराइज इट. ओके, अगर यहाँ गौर से देखो तो फॉर्मूला कौन सा बन रहा है? वी कैन ट्रांसफॉर्म इट लाइक दिस. ये आपके पास स्क्वायर में आ गया है. ओके, प्लस 2, ये आपके पास a है, a स्क्वायर में आ रहा है, प्लस 2 फॉर्मूले का आ गया है. तो यू कैन राइट इट लाइक दिस 1 अपॉन पी स्क्वायर. एंड लास्ट में आपके पास जो थर्ड टर्म बन रही है वो 1 का स्क्वायर. ये वाली चीज़ आपकी इधर चली जाएगी. सो यू कैन राइट इट इंस्टेड ऑफ b 1 ओवर हियर. ठीक है, ये यहाँ से आ गया है और ये यहाँ से आ गया है. ओके, तो 2ab plus b square. So you can write it like this 1 upon p square plus 1 whole square. Okay, तो इसको आप और दिस इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यू कैन यूज़ इनसाइड. तो ये क्या बन जाएगा? 1 अपॉन पी स्क्वायर. ओके, ये क्यों किया मैंने? ये भी बिल्कुल ठीक आंसर था, लेकिन जब आप यहाँ पर चेक करोगे तो आपके पास लिखा हुआ था 1 प्लस 1 अपॉन पी स्क्वायर. ठीक है, दूसरा था 1 माइनस 1 अपॉन पी स्क्वायर, और ये तो दोनों हो ही नहीं सकते थे. ठीक है, तो आप इसको जब इस फॉर्म में, यानी ये वाली फॉर्म आपके पास जो आंसर आया है, अगर आप इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के ज़रिए अगर आप इसका ऑर्डर चेंज कर दो तो दैट वुड बी ए. सही है, तो ये आपका ऑप्शन हो गया है. लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 1 वी गेट दिस थिंग. तो लेट मी ओपन इट लाइक दिस. एक्स स्क्वायर minus 2x and minus minus plus 1. Okay, now I will factorize. I will factorize it. What it would be, यहाँ आप देखें तो ये आपके पास जो फॉर्मूला बन रहा है वो बन रहा है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का. ओके, तो ये आप माइनस 2 ऑफ फॉर्मूला. x will come here like this 1 whole square. 1 will come like 1 will come as b. ओके, एंड ये अगर आप देखो तो ये यही चीज़ बन जाती है. इट मीन्स दैट यू कैन क्लोज द फॉर्मूला लाइक दिस x माइनस 1 होल square, and where it is x minus 1 whole square, this is here 2 times x minus 1, and x minus 1 is x minus 1 whole square. Let's get started. MCQ number 25. This is t cube minus 3t square plus 3t minus 1. अगर आप इसको गौर से देखें तो ये कौन सा वाला फॉर्मूला बन रहा है? a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब. ठीक है, तो ये आपके पास क्यूब का फॉर्मूला बन रहा है, एंड यू कैन राइट इट लाइक दिस a माइनस b होल क्यूब. ठीक है, ये इसके इक्वल होता है. तो इसी तरीके से हम यहाँ देख लेंगे. दिस इज t होल क्यूब जस्ट लाइक a क्यूब. ओके, माइनस 3t स्क्वायर, जैसे आपके पास a स्क्वायर था दैट वुड बी t स्क्वायर. ठीक है, और b आपके पास यहाँ मौजूद है 1 एंड प्लस
3 टी 1 आ जाएगा आपके पास, 3a की जगह आपके पास t आ जाएगा 3t, ओके। a की ये वैल्यू है ना आपके पास, दिस इज a एंड द लास्ट वन होल क्यूब, दिस इज b, ओके। तो ये आपके पास a था, ये b था, तो आपने ये a लगा दिया 3ab²। अब यहाँ b² था आपका ना, यहाँ देखें तो b की जगह पर आप 1 लगा के स्क्वायर लगा दोगे, दैट इज़ इक्वल टू, अब आपका ये पूरा फॉर्मूला अगर आप इसको देखें तो दैट इज़ इक्वल टू दिस वन एंड दैट इज़ इक्वल टू दिस वन, ठीक है। 3t यहाँ आ गया है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो 3t आ गया, और इधर जो है वो आपको नज़र आ रहा है 3t² बन जाएगा, ये ऊपर 3t² बन जाएगा। तो सो यू कैन क्लोज दिस फॉर्मूला लाइक t-1 whole cube. So that is t-1 whole cube, part A. Option A would be the answer. All of the given options are the zeros of the polynomial, ठीक है। ये सारे zeros दिए हुए हैं, इन जो यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैं ये सारे इन्होंने कहा है कि ये ज़ीरोज़ हैं, सिर्फ इसमें से एक जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है कि जब आप उसकी वैल्यू रखें, इफ़ सपोज़ कि यहाँ पी वाई है, अगर वाई की जगह आप ये वैल्यूज़ रखें 1 बाय 1, तो आपका जो पॉलिनोमियल है उसकी जो वैल्यू है वो ज़ीरो आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पूछा गया है कि ये तमाम तो ज़ीरो हैं एक्सेप्ट, सिर्फ इसमें से एक जो है वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, यानी उस वैल्यू के ऊपर आपका जो पॉलिनोमियल होगा वो ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है। रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा, ठीक है, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आएगा। दैट इज़ इक्वल टू पी, अब y की जगह पर अगर मैं ज़ीरो रख देती हूँ तो दैट इज़ इक्वल टू 0 - 1, 0 - 2 एंड 0 + 4। ऑफ कोर्स एक भी ज़ीरो है और सब प्रोडक्ट फॉर्म में है, तो सारा सब कुछ मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो दे देगा, तो दिस इज़ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल हो गया। दूसरा चेक कर लेते हैं, इनमें से कोई एक ऐसा है जो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। 1 - 1, 1 - 2, 1 + 4, ओके। इसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ ये चीज़ आपकी ज़ीरो बन रही है, इट मीन्स दैट ये पूरा का पूरा मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो बन जाएगा, ये भी आपका ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। नाउ P2 को चेक कर लेते हैं, दैट इज़ 2 एंड दैट इज़ 2 - 1, 2 - 2, 2 + 4। तो यहाँ आप देख सकते हैं दैट वुड बी ज़ीरो, इसका मतलब ये भी ज़ीरो हो जाएगा। ये शुरू के जो A, B, C ऑप्शंस हैं, all three options are zero of the polynomial. Now the last one is 4 - 1, ये भी ज़ीरो नहीं हुआ, 4 - 2 ये भी ज़ीरो नहीं हुआ, और 4 + 4 ये भी ज़ीरो नहीं हुआ। इट मीन्स दैट 4 इज़ द, अगर हम इसको सॉल्व करें तो यहाँ आपका एक अदर देन ज़ीरो कोई सा नंबर आ जाएगा, इट मीन्स दैट 4 इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये आपके पास जो है वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ। द पॉलिनोमियल PA इज इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय अ लीनियर डिवाइजर लीव्स -1 एज अ रिमाइंडर। आपका जो रिमाइंडर यानी R की जो वैल्यू आ रही है वो -1 आएगी। वन ऑफ द लीनियर डिवाइजर इन दिस केस इज यू नीड टू फाइंड आउट इट, ओके। इसमें से आपने बताना है, तो दैट इज PA इक्वल्स A² - 3A + 1, ठीक है। तो हम इसके अंदर वैल्यू रखने के लिए जा रहे हैं। इन्होंने कहा है लीनियर डिवाइजर लीव्स -1 एज रिमाइंडर। अब हम इसमें से चेक करते जाएंगे। फर्स्ट वाला चेक किया तो A - 3 = 0 रखेंगे एंड दैट इज A इज इक्वल टू 3। आई विल पुट इट इनसाइड instead of A, that is A 3² - 3, 3 + 1, this is 3 3 are 9 - 9 + 1, that is equal to 1, ठीक है। तो आपके पास रिमाइंडर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, जबकि आपके पास रिमाइंडर क्या आना चाहिए था, -1 आना चाहिए था। P3 के बाद हम चले जाते हैं, यहाँ से अगर हम निकालें तो A - 1 इज इक्वल टू 0 इम्प्लाइज A इज इक्वल टू 1। अगर मैं 1 रख देती हूँ, देखते हैं फिर आपके पास -1 रिमाइंडर आ रहा है, यानी यही इसका रिमाइंडर है। कीप इट इन योर माइंड, ये जो आपके पास आंसर निकलता है दैट इज़ द रिमाइंडर, ठीक है। तो अब हमारे पास आई एम गोइंग टू पुट स्क्वायर 3 1 + 1, that is equal to 1 - 3 + 1, that is 2 - 3 is equal to -1. So remainder is -1. It means that D is your option.
ठीक है. नाउ गो टूवर्ड्स 28. अप्लाइंग द फैक्टर थ्योरम. वी नीड टू अप्लाई द फैक्टर थ्योरम. वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ द पॉलिनोमियल पी टी इज. अब इसमें से हमें फिर से चेक करना है. ठीक है, तो आपके पास है पी टी इज इक्वल टू टी क्यू माइनस टी स्क्वायर माइनस टी प्लस 1. ठीक है, तो अब हमें इसमें से फैक्टर्स को चेक करना है. अगर मैं टी ले लेती हूँ तो आई विल टेक इट लाइक दिस, टी इज इक्वल टू 0. ठीक है, ये वाला ले लिया हमने. अब टी की वैल्यू अगर मैं 0 रख देती हूँ तो वॉट इट वुड बी 0 माइनस 0 माइनस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 1. ठीक है, रिमाइंडर हमारे पास 0 आना चाहिए. अगर हम फैक्टर थ्योरम ले रहे हैं तो ये जो हमारे पास P ऑफ 0 है ये 0 आना चाहिए. दिस इज़ द रिमाइंडर एंड रिमाइंडर शुड बी 0, जो कि 0 नहीं है. इट मीन्स दैट T इज़ नॉट द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. नाउ टेस्ट t माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट वुड बी t इज इक्वल टू 2. अगर मैं इसमें 2 रख देती हूँ तो दैट इज़ 2 2 ज़ार 4 4 2 ज़ार 8 2 2 ज़ार 4 एंड माइनस 2 प्लस 1. okay, that is 4 minus 2 plus 1 is equal to 2 plus 1 is equal to 3, which is remainder not equal to 0. तो ये भी आपका फैक्टर नहीं हो सकता. ठीक है, तो दिस इज़ नॉट द रूट ऑफ दिस पॉलिनोमियल. अब आप रख लें t plus 1 equals to 0, which is equal to t is equal to negative 1. I will put it over there. ये जो आपके पास 0 पॉलिनोमियल, 0 ऑफ द पॉलिनोमियल है, या आप इसे रूट कह सकते हैं. आई विल पुट इट ओवर हियर. तो ये आपका क्या बन जाएगा, नेगेटिव 1 का क्यूब क्या आ जाता है, नेगेटिव 1 आ जाता है. नेगेटिव 1 का स्क्वायर जो है वो पॉजिटिव हो जाता है, और नेगेटिव 1 माइनस, तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाता है, और प्लस 1 हो जाता है. ठीक है, तो दैट वुड बी नेगेटिव 1 पॉजिटिव इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू रिमाइंडर. तो ये आपका रिमाइंडर इस पर 0 आ रहा है. इट मीन्स दैट दिस इज द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल. नाउ 2022, द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस एंड दिस. ये तो वही क्वेश्चन है जो रिपीट हो गया है ऊपर. हम लोग ये क्वेश्चन सॉल्व करके आए, सो लीव इट एज इट इज. होल स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ दिस इज 16 एंड द वैल्यू ऑफ एस यू स्क्वायर माइनस 2st minus 2t u square is 10, and we need to find out the value of s minus 2t plus u square whole square. अगर हम इसको गौर से देखें, फोकस करें, तो इट लुक्स लाइक a प्लस b प्लस c होल स्क्वायर. ओके, तो ये कंप्लीट परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला है, जो कि आपके पास टर्म्स कितनी हैं, 3 टर्म्स हैं. सो वी कैन ओपन इट लाइक दिस. आपको फार्मूला याद होना चाहिए, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca. ओके, so let me write it over here. This is s minus 2t plus u square whole square. अगर आप यहाँ देखें तो this is the value of a, this is the value of b, and this is the value of c. So let's get started. A square means s square. Okay, b square means minus 2t whole square. So let me write it over here, minus 2t whole square, and that is plus u square whole square. Okay, and then plus 2ab would be s minus 2t. Let me write over here s minus 2t, and that is plus bc. bc would be minus 2t u square, and then plus ca. ca would be u square up and multiplied by s. So let me start it. इसको भी हम इधर ब्रैकेट में लिख लेते हैं. ठीक है, तो what it would be, this is s square, and that would be 4t square plus u4. okay, ये हमने इसको सॉल्व कर लिया. प्लस 2 what it would be, पहले हम इसको लिख लेते होते हैं, तो that would be u square s and minus 2t u square. okay, and that would be minus sorry, this is minus 2t, तो that would be minus 2st. okay, तो ये हमारे पास आ गया है after solving this formula.
और अब यहाँ से हम वैल्यूज़ को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ आपके पास है एस स्क्वायर माइनस 2t, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एस स्क्वायर प्लस 4t स्क्वायर, इफ़ वी विल ओपन द ब्रैकेट्स दैट वुड बी u रेज टू द पावर 4 इज इक्वल टू 16। अच्छा, अब यहाँ देखिए एस स्क्वायर प्लस 4t प्लस यू स्क्वायर, ये जो आपके पास है यहाँ आप 16 पुट कर सकते हैं, ठीक है। लाइकवाइज दिस इज एस यू स्क्वायर माइनस 2st माइनस 2t यू स्क्वायर। अब यहाँ देखिए ये पूरी टर्म वही है, ठीक है, ये पूरी टर्म वही है। सो यू कैन पुट 10 ओवर हियर, सो दैट वुड बी, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, एस स्क्वायर, इसकी जगह हम पुट कर देंगे 16 और प्लस 2, और यहाँ हम पुट कर देंगे 10, तो दैट वुड बी 16 प्लस 20 इज इक्वल टू 36 वुड बी योर आंसर। दिस क्वेश्चन इज़ अ बिट लेंथियर, सो बी केयरफुल व्हेन यू विल बी सॉल्विंग इट। थोड़ा जल्दी आपने जो है वो हाथ चलाना है, ठीक है। तो ये आ गया, नाउ लेट मी रिमूव इट। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर MCQ नंबर 22, द एक्सप्रेशन x minus 3 whole square minus 2 3 minus x, ये प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी है। तो दैट इज़, लेट मी राइट इट ओवर हियर, x minus 3 मीन्स कि हमें इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, x minus 3 होल स्क्वायर, ठीक है, और माइनस, नाउ व्हाट विल यू डू, टू एज इट इज़, ब्रैकेट हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं। अब यहाँ देखें इसको सॉल्व कैसे करेंगे, ये x minus 3 है, ये x minus 3 एंड दिस इज़ 3 minus x। ईदर वी शुड चेंज दिस x minus 3 to 3 minus x एंड दिस x minus 3 to 3 minus x, और इन दोनों को टच करने के बजाय विदाउट टचिंग दीज टू टर्म्स वी विल चेंज दिस टर्म एज टेकिंग नेगेटिव एज कॉमन, ठीक है। तो मैं यहाँ से करना क्या, दोनों काम में से कोई भी हो सकता है, मैं यहाँ से नेगेटिव कॉमन लूँगी एंड दैट वुड बी x वुड बी पॉजिटिव, आई विल चेंज द ऑर्डर एंड 3 वुड बी नेगेटिव, ठीक है। सिर्फ मैंने x और 3 की जगह को चेंज कर दिया है, एंड प्लस x minus 3, ओके। एंड देन नाउ व्हाट विल वी डू, x minus 3 and x minus 3, so take out x minus 3 as common and that would be x minus 3, and that would be minus minus plus 2 plus 1, okay, and that is x minus 3 and this is x minus 3 plus 2 plus 3, that would be cancelled, open the bracket and then that would be cancelled and that is x minus 3, B is your answer, ठीक है। तो आगे चले जाते हैं अब हम, the completely factorized form of this is, so let me write it over here, 5 plus 50r plus 125r square. So let me write it in standard form. So that is 125r square plus 50r plus 5. The constant term would be at the last place. So let me take out 5 as common, that is 25r square plus 10r plus 5. Now we will use, sorry, that is 1, okay. So you can use middle term break method or perfect square. So that can be written as perfect square also, 5r whole square plus 2 bracket plus 1 square. So let me write over here the 5r and there the 1. So if you will multiply these, 2 5s are 10, 10r, तो ये आपका ये टर्म बन रही है. So you can pour it inside the bracket like 5r plus 1 whole square, and where it is, this is here. ये है देखिए 5r plus 1 है, इधर 1 plus 5r है. So commutative property with respect to addition holds over here. So this is 24 on factorizing the polynomial. This we get, okay, let me solve it here. This is p square and inside the bracket there is another variable h, और यहाँ अगर आप देखो तो फॉर्मूला जो है वो क्लोज हो रहा है, ठीक है. तो दैट इज़ द फॉर्मूला ऑफ h minus 1 whole square, that would be equal to p minus h minus 1 and p plus h plus 1, that is equal to p minus h plus 1
and p plus h plus 1. Where it is? This is which one? This is here. Okay, so D. Now let's get started. Question number 30 MCQ. To factorize the expression this plus 15 product form plus 15, the option for the essential arrangements is R. अच्छा, अब यहाँ देखें, this is a type of factorization method. ठीक है, यहाँ पे कौन सा factorization method यूज़ होगा, ये कौन सी टाइप है? इसमें हम कॉम्बिनेशन बनाते थे, पेयर बनाते थे, और कोई से भी दो पेयर जो आप लेंगे, ये जो कांस्टेंट लेंगे, इनको सॉल्व करने के बाद वो दूसरे पेयर के इक्वल आ जाएगा. ठीक है, दो पेयर्स को अगर आप प्रोडक्ट फॉर्म लेते हैं तो वो अगले दो पेयर्स की प्रोडक्ट फॉर्म के इक्वल आनी चाहिए. ठीक है, तो यहाँ आपके पास ये तीन दिए हुए हैं. अब इसमें से हम चेक कर लेते हैं. ठीक है, -1 एंड -2, अगर हम इसका पेयर बनाते हैं तो दैट वुड बी -3, और इसका पेयर बनाए तो दैट वुड बी +5. इक्वल नहीं आ रहा है. नाउ दिस इज -1 एंड +2, दैट वुड बी +1, एंड -2 एंड +3, दैट वुड बी +1. तो मुझे नज़र आ रहा है ये जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन हो सकता है. नाउ द थर्ड वन, x -1 + 3 दैट इज़ 2, एंड x -2 + 3 दैट इज़ 1. ये भी बराबर नहीं आ रहा है. सो योर ऑप्शन वुड बी नंबर 2. अच्छा, ये ऑप्शन नहीं है. अभी यहाँ आपने ऑप्शन सॉल्व करने, ABCD. यहाँ कहा है 1 ओनली, यहाँ कहा है 2 ओनली, तो दैट वुड बी 2 ओनली. दैट इज़ द करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, यहाँ आपने ऑप्शन ऊपर में नहीं लगाना है. कीप इट इन योर माइंड. ये आपको ऊपर में ऑप्शन नहीं लगाना है, नीचे आपको उसका आंसर देना है. ठीक है, अच्छा, अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 25. वन ऑफ द ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल. ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल मीन्स इफ़ यू विल पुट दैट वैल्यू इन दिस इक्वेशन और इन दिस एक्सप्रेशन, you will get the value of px as 0. So one by one just put the values. -1, x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट करती हूँ तो दैट वुड बी 2 -1 होल क्यूब माइनस -1 -1. दैट इज माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस 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 प्लस 1 एंड -1. दैट वुड बी कैंसल्ड. -2, ये 0 नहीं आया, सो लीव इट एज इट इज़. नाउ पुट द वैल्यू 0. अगर मैं यहाँ 0 रख दूँ तो दैट वुड बी 0, दैट वुड बी 0, एंड योर आंसर वुड बी नेगेटिव. वैल्यू ऑफ px वुड बी -1. तो ये भी नहीं हो सकता 0 के साथ. नाउ कम टूवर्ड्स 1. इफ़ आई विल पुट 1 ओवर देयर, और इट वुड बी x³. जब यहाँ आप 1 रखोगे तो दैट वुड बी 1. 2 आ गया है, फिर यहाँ आपके पास 1 आ जाएगा और यहाँ 1 है. ठीक है, तो दैट वुड बी, अगर आप इसको निकालो तो दैट वुड बी 2 - 2 इज इक्वल टू 0. सो योर आंसर वुड बी C. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. MCQ number 26. One of the factors of the polynomial is x - 2, x - 1, x + 1 and x + 2. तो अगर हम इसको थोड़ा सा दोहराएं तो हमें पता चलेगा कि ये फैक्टर थ्योरम विल बी अप्लाइड ओवर देयर, बिकॉज वी आर गोइंग टू फाइंड आउट, वी आर गोइंग टू प्रूव एनी वन ऑफ देम एज द फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ठीक है, तो अब हमें जो है, अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट करूँगी तो दैट वुड बी x = 2. तो अगर मैं यहाँ 2 रख देती हूँ तो मेरा आंसर जो है, अगर p(2) विच इज़ रिमाइंडर, ठीक है, अगर वो रिमाइंडर मेरे पास 0 आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि x = 2 वुड बी द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल, और x - 2 विल बी द फैक्टर ऑफ द पॉलिनोमियल. तो सबसे पहले मैं 2 को जो है वो चेक कर लेती हूँ. तो दैट इज़ 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, माइनस 2 × 2 = 4 प्लस 1, दैट इज़ नॉट इक्वल टू 0. अगर आप इसको सॉल्व करो तो 0 नहीं होता. नाउ द सेकेंड वन, x - 1, तो दैट वुड बी x - 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1. नाउ लेट मी पुट ओवर हियर द 1 रखने पे ये 1 आ जाएगा, ये -2 और ये +1, तो दैट वुड बी इक्वल टू 0. Okay, 2 - 2 would be equal to 0. It means that x - 1 would be the factor of this polynomial. ठीक है, let me make a circle on at the factorized form of the expression. अब आपके पास है 1/27 plus 27a³. If you will see, this is the formula. ठीक है, क्या formula बन रहा है? 3 × 3 = 9, 9 × 3 = 27. Let me write it over here like this, and this is 3a³ Okay. So let me open
अगर आप इसे गौर से देखो तो कौन सा फॉर्मूला ये बन रहा है, अगर मैं यहाँ से ये 3 को रिमूव करती हूँ और द होल ब्रैकेट आई विल यूज़ ओवर देयर लाइक दिस, ये आपके पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला बन गया है. सो हाउ विल यू राइट, हाउ विल यू सॉल्व इट. अब आप यहाँ से अगर देखें तो ये आपके पास बनेगा 1/3 प्लस 3a. ओके, एंड दिस इज a प्लस b. नाउ a square, that is 1/9. Okay, minus ab. ab means 3 will be cancelled, so that would be a, and plus b square means 3 3 are 9, 9a square. सो यहाँ हम देख लेते हैं, इसको इन्होंने इधर इधर करके अरेंज कर दिया है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस ऑल्सो. 3a को कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी से हम इस तरह लिख सकते हैं, इसलिए कि ऑप्शन में इसी तरह लिखा हुआ है. एंड आई कैन राइट इट लाइक दिस 9a स्क्वायर माइनस a प्लस 1/9. ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा. 3a प्लस 1/3 ये आपके पास आ गया है. ठीक है, b इज़ योर answer. Okay, so let's go towards question number 28 on factorizing the polynomial 1 plus 4c raised to the power 4. ठीक है, तो ये फैक्टराइजेशन यहाँ हमें यूज़ करनी है. मिडल टर्म यहाँ मौजूद नहीं है, पॉजिटिव साइन लगा हुआ है. इन केस अगर यहाँ नेगेटिव साइन होता तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, हम इसको लिखते 1 स्क्वायर डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स का फॉर्मूला बना लेते और फिर इसको सॉल्व कर लेते. बट देयर इज़ पॉजिटिव साइन. इफ़ देयर वुड बी पॉजिटिव साइन, व्हाट वी नीड टू डू इज़, यहाँ हम मिडिल टर्म बनाएंगे अपने पास से. ठीक है, और यहाँ हमारे पास 4c रेज टू द पावर 4 आ जाएगा. ठीक है, और इसको बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, लेट मी राइट इट अगेन. यहाँ हमने लिखना है 2c square whole square. Okay, this is a square and this is b square. Now 2ab. Okay, 2ab, so that is 1 and that is 2c square. Okay, and whatever we are going to add in it, we need to subtract also. Keep it in your mind. तो ये मेरे पास आ जाएगा 2c square. तो that would be, यहाँ आप फॉर्मूला क्लोज कर लोगे, 1 plus 2c square whole square, and that is minus 2 2s are 4c square. So you can write it like this also. या आप देखें तो डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स का फॉर्मूला बन गया है. ठीक है, तो आप यहाँ लिख लेंगे 2c होल स्क्वायर. ओके, 2 2s are 4. तो अब ये आपका डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला, आई विल राइट इट लाइक दिस 1 प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2c and 1 plus 2c square plus 2c. अब इन दोनों को पॉजिटिव बनाने के बाद आगे देख लेते हैं 2c स्क्वायर माइनस 2c प्लस 1 और यहाँ 2c. तो ये आपका जो है ऑप्शन वो करेक्ट है. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. ठीक है, इसको बार बार आपने पढ़कर देखना है. इफ x माइनस 1 इज अ फैक्टर, फैक्टर थ्योरम विल बी अप्लाइड. px is equal to this, then the value of a will be, we need to find out the value of a. तो जब आपका फैक्टर थ्योरम यूज़ होता है तो यू नो दिस थिंग कि आप यहाँ से जब वैल्यू पुट करोगे तो आपकी p ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो यहाँ हम इसको रख देते हैं x माइनस 1 इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1. ठीक है, तो हम इसको इसमें पुट कर देंगे द वैल्यू ऑफ x विच इज़ 1, और हमारा आंसर जो है इसका जो है सॉल्यूशन वो 0 के बराबर आना चाहिए. तो दैट इज़ x क्यूब. लेट मी राइट ओवर हियर द वैल्यू विच इज़ 1 का हम क्यूब ले लेंगे, माइनस a 1 स्क्वायर प्लस 1 एंड what it would be, this is 1 minus a plus 1. okay, so that would be 2 minus a, और ये हमारे पास किसके इक्वल आना चाहिए, that must be p1 मस्ट बी इक्वल टू 0 आना चाहिए. तो ये यहाँ p1 इसके इक्वल है और यहाँ p1 इसके इक्वल है, तो दोनों को इक्वल रख लेंगे. 2 माइनस a इज इक्वल टू 0, माइनस a इज इक्वल टू माइनस 2 विल बी कैंसल्ड एंड योर आंसर इज पॉजिटिव 2. ओके, नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स नेक्स्ट 2021. On complete factorization, 3 minus 3p square is equal to, so let me take out 3 as common, that would be 1 minus p square. complete factorization के लिए difference of 2 squares, that would be 1 minus p, 1 plus p. so that is
here the expression r square minus 3 plus 6r plus 12. Let me solve it first. हमें इसको कैसे लिखना है, फैक्टराइज करना है, तो that would be r square plus 6r and negative 3 and positive 12, that would be plus 9, and by using which formula, perfect square formula, what it would be, that is r whole square plus 2, make 2 brackets plus 3 square, and that is 3 from here and r from there. जब इसको मल्टीप्लाई करें तो ये क्या बन जाता है, 6r. इसका मतलब है you can write it like this, r plus 3 whole square. A option would be correct. Now if a polynomial this is divided by a linear expression, then the remainder is 1. The linear expression must be, यहीं से उठा के हम वैल्यूज़ को इसके अंदर डालते जाएंगे. ठीक है, लीनियर एक्सप्रेशन क्या हो सकता है, क्या ये हो सकता है लीनियर एक्सप्रेशन? तो हम चेक कर लेते हैं कि अगर इसको पुट करने के बाद आपका रिमाइंडर 1 आ जाए. ठीक है, तो हम यहाँ से निकाल लेते हैं वैल्यू इज इक्वल टू 0 एंड दैट वुड बी इज इक्वल टू x इज इक्वल टू -1. नाउ पी एक्स इज इक्वल टू q cube x plus q cube plus 1. ओके, सो लेट मी, और इसका आंसर आपके पास 1 आना चाहिए, तो मैं यहाँ p ऑफ नेगेटिव 1 रख देती हूँ, रिमाइंडर 1 आना चाहिए. ठीक है, दिस इज़ रिमाइंडर थ्योरम. ओके, तो ये q क्यूब एज इट इज़ रहेगा, x नेगेटिव 1 के बराबर है. लेट मी पुट इट ओवर हियर, q क्यूब एज इट इज़ एंड 1, दैट इज़ माइनस q क्यूब प्लस q क्यूब प्लस 1. That would be cancelled and your answer, your value is 1, which is as the remainder is 1. तो यहाँ आपके पास r की वैल्यू जो है वो 1 आ गई है. It means that A would be the option. Now let me go towards 25th MCQ. Now let's go towards 25th MCQ on factorization of this. We get this. Okay, how would we solve it? Multiply कर दीजिए x square plus 2x plus 1 and that would be equal to x plus 1 whole square and can be written like this. इस तरह ब्रेक करके 2 दफ़ा लिखा जा सकता है, तो that is C. On complete factorization of this we get these. ठीक है, इनमें से कोई any one of them, not these, any one of them. अब यहाँ अगर आप देखें तो इसको भी मैं ब्रैकेट में कर देती हूँ, तो देयर इज़ वन फैक्टर विच कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, x प्लस वाई हमने बाहर निकाल लिया, यहाँ बच गया है 1 और यहाँ बच गया है x माइनस वाई. सो लेट मी राइट इट लाइक दिस, x प्लस वाई एंड 1 माइनस x प्लस वाई, वेयर इट इज़ x प्लस वाई and 1 minus x plus y. This is D. Okay, now let's go towards 27 and this is on complete factorization. पहले तो इसको सॉल्व कर लीजिए, x square minus 2x plus 1 and you can see that this is x minus 1 whole square can be written in this form 2 times. Okay, ये देखिए, तो A would be the करेक्ट ऑप्शन. ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ बी क्यूब माइनस 1 अपॉन बी क्यूब, फॉर्मूला ओपन कर दीजिए इसका. ए क्यूब माइनस बी क्यूब यहाँ लग रहा है फॉर्मूला, या आप कहें ए क्यूब माइनस बी क्यूब ना लिखें, ए क्यूब माइनस बी क्यूब ना लिखें बिकॉज ऑलरेडी वी आर यूजिंग हियर बी, तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब. व्हाट इज़ दिस फॉर्मूला? यू कैन राइट इट लाइक दिस, एक्स माइनस वाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर. ओके, यहाँ नेगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव होता है. ठीक है, तो वी कैन राइट इट लाइक दिस, बी माइनस 1 अपॉन बी और बी स्क्वायर, बी कैंसिल हो जाएगा, प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपके पास आ गया है बी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बी स्क्वायर. ठीक है, तो ये आपके पास डी ऑप्शन जो है वो, दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन. Now the polynomial this is divided by this, then the remainder is 1. We need to find out the value of a. So I can write it like this, px is equal to ax cube minus x square minus x. Okay, now let me put the value, this is x plus 1 equal to 0 and the value of x is negative 1. Let me put it over here. देखते हैं हमारे पास रिमाइंडर के जगह हम क्या चीज़ पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे. ठीक है, दैट इज़ इक्वल टू
as the remainder. P of negative 1 would be the remainder which is equal to 1. Okay, तो यहाँ हम वैल्यू रख देते हैं a negative 1 whole cube, negative 1 whole square minus negative 1. What it would be? ये आ जाएगा minus a, ये आ जाएगा minus 1 और ये आ जाएगा plus 1. ओके, दैट वुड बी कैंसल्ड. और आपको ये पता है कि p ऑफ नेगेटिव 1 जो है वो इन्होंने कहा है कि रिमाइंडर जो है वो 1 के इक्वल है. सो आई विल राइट इट लाइक दिस, नेगेटिव a इज इक्वल टू, ये दोनों जो हैं वो आपस में एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे, इज इक्वल टू 1 एंड a इज इक्वल टू नेगेटिव 1 वुड बी योर आंसर. सो लेट मी राइट इट लाइक दिस. ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 स्क्वायर माइनस 3a माइनस b होल स्क्वायर. Difference of two squares formula, this is 3 minus 3a minus b and 3 plus 3a minus b, and that would be equal to 3 minus 3a plus b and 3 plus 3a minus b. Let's check. यहाँ क्या आ रहा है? 3 minus 3a plus b and 3 plus 3a minus b. B option. The factors of this. Okay, we need to find out the factors. यहाँ आप ग्रुपिंग कर लीजिए. ठीक है, ये दो दो की ग्रुपिंग हो जाएगी. यहाँ चेक कर लेते हैं कि क्या हमारे पास कॉमन फैक्टर्स आ रहे हैं. दैट इज़ x प्लस 2 एंड प्लस यहाँ से आप कॉमन लेंगे 2y x प्लस 2. येस, बोथ आर सेम, सो वी कैन राइट इट लाइक दिस. x प्लस 2 एंड x प्लस 2y. तो ये कहाँ है आपका x प्लस 2 एंड x प्लस 2y? डी ऑप्शन. ऑन कंप्लीट फैक्टराइजेशन टेक आउट 2s कॉमन. दिस इज a क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू, वी कैन राइट इट लाइक दिस, एंड दैट इज a माइनस 1 a स्क्वायर प्लस a प्लस 1. ये बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, तब आप इसको इससे डायरेक्ट लिखने पाएंगे. तो 2a माइनस 1 प्लस 2a नो प्लस a, ये वाला आपका ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है. ठीक है, नाउ वन ऑफ द फैक्टर्स ऑफ दिस इज, नाउ लेट मी टेक आउट एक्स स्क्वायर एज कॉमन, तो दैट वुड बी x प्लस 1 एंड माइनस 4 as common, that is x plus 1 and that is x square minus 4 and x plus 1. तो एक फैक्टर इसमें से x plus 1 दिस इज हियर. ठीक है, एक फैक्टर बताना था आपको. दूसरा फैक्टर x स्क्वायर माइनस 4 है, कैन बी ब्रोकन इनटू 2 पार्ट्स, x माइनस 2 एंड x प्लस 2, लेकिन हमें सिर्फ एक फैक्टर बताना था. ओके, नाउ 21. For x square minus 2x cube minus 3, one of the zero of the given polynomial. You need to find out one of the zero of the given polynomial. Okay, तो that is, यहाँ अगर हम देखें तो पहले तो मैं इसको सपोज कर लूँगी px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x क्यूब माइनस 3. ओके, अब फर्स्ट जो है वो आपके पास नेगेटिव 2 है. दिस इज़ द वैल्यू ऑफ x. x की वैल्यू क्या है? नेगेटिव 2 है. लेट मी पुट इट ओवर देयर. अगर मेरा p ऑफ नेगेटिव 2 इक्वल टू 0 आ जाता है, मीन्स रिमाइंडर 0 आ जाता है, तो आपका जो नेगेटिव 2 होगा दैट वुड बी कॉल्ड एज ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. ठीक है, तो मैं पहले नेगेटिव 2 को चेक कर लेती हूँ. नेगेटिव 2 होल स्क्वायर माइनस 2, नेगेटिव 2 होल क्यूब माइनस 3, सो दैट वुड बी माइनस 2 2 ज़ार 4, तो दैट वुड बी पॉजिटिव 4 and that is minus wait for some moment. This is, I can write it like this. I will write it like this. ये आपके पास क्यूब था तो माइनस 2 एज इट इज़. 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 एंड नेगेटिव 8. ठीक है, एंड माइनस 3, दैट इज़ 4 माइनस माइनस प्लस 8 2 ज़ार 16 minus 3. This is not equal to 0. Now let's check negative of 1. नेगेटिव 1 जब आप रखेंगे तो दैट इज़ नेगेटिव 1 होल स्क्वायर माइनस 2, नेगेटिव 1 होल क्यूब माइनस 3. बहुत एहतियात से इसको चेक किया जाएगा. दैट इज़ -1 एंड माइनस 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 प्लस प्लस माइनस माइनस, तो ये आपके पास नेगेटिव 1 आ जाएगा. तो दैट इज़ 1 माइनस माइनस प्लस 2 1 ज़ार 2 माइनस 3. तो यहाँ अगर आप देखें तो ये सब कैंसिल होकर 0 दे रहे हैं, तो दैट वुड बी द ज़ीरो ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल. तो नेगेटिव 1 वुड बी योर करेक्ट ऑप्शन. ठीक है, तो नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स 2018 ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ दिस. वी विल गेट 1 out of these options.
तो यहाँ हम इसमें से कॉमन लेकर देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो दैट वुड बी 5 ऑफ x, तो यहाँ आपके पास x हो जाएगा एंड दैट वुड बी a, एंड प्लस हियर वी विल टेक आउट 2 एज कॉमन, तो दैट वुड बी 5, 2 5s और 10, यहाँ आपके पास 5 आ जाएगा, ओके। सो 5 एंड x प्लस that is a, both the terms are same, so can be taken out as common, 5x plus a and 5x plus 2, okay। तो हमारे पास ये कहाँ मौजूद है, this is here, no no no, तो यहाँ हम देख लेते हैं ये हमारे पास कहाँ मौजूद है, 5x plus a, 5x plus a and 5x plus 2. This is the correct option. Now 16 8 p cube plus 12 p square cube plus 6 p q square plus q cube can also be expressed as, you can write it any one the value any one of the out of these options you can write this expression. तो यहाँ अगर आप देखें तो ये क्यूब का फॉर्मूला आपको नज़र आ रहा है, you can write it like this, 2p cube plus 3 2p, ओके इसको आप ऐसे ही छोड़ दें, और फिर प्लस 3 2p स्क्वायर, ओके, एंड वेट फॉर सम मोमेंट, देयर इज़ प्रॉब्लम, वेट लेट मी राइट इट। देखिए यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 3a स्क्वायर b होता है और 3ab स्क्वायर होता है, तो 2p एज इट इज़, और यहाँ मैं स्क्वायर लगाऊंगी। अब b की टर्म देखें, b क्या है आपके पास, b इज़ q whole, the value of b is q, okay, so put q over here and put q over here, what it would be, अगर मैं इसको ओपन करूँ तो यही आपके पास आ जाता है इन दोनों को सॉल्व करके, 2 2 4 4 3 12, 12p square q, 12p square q, and this is 3 2s are 6, 6pq square, 6pq square, so you can write it like this, 2p प्लस q होल क्यूब, ओके। तो ये आपके पास कहाँ है, 2p प्लस q होल क्यूब, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्या मसला है, नाउ 2017 द फैक्टर ऑफ दिस आर, so we can write it like this, 10q whole square minus 3r whole square can be written as, because this is the difference of two squares, 10q minus 3r and 10q plus 3r, okay, so that is here 10q plus 3r, 10q minus 3r, C option. If x minus b is a factor, factor theorem will be applied, remainder would be 0 of a polynomial px, then pb is equal to, तो ये आपको स्टैंडर्ड फॉर्म बनानी होगी, px can be written as the product of x minus b and the quotient प्लस r, तो यहाँ आप प्लस r की जो वैल्यू आपकी r की वैल्यू है वो 0 है, बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज़ द फैक्टर थ्योरम। तो मैं इसको यहाँ से रब कर देती हूँ, एंड नाउ आई विल पुट द वैल्यू, व्हाट वुड बी द वैल्यू ऑफ p ऑफ b, इंस्टेड ऑफ x आई विल पुट b over here and here also, b minus b qx and qx, not qx, qb, okay, and what it would be, b minus b would be 0 and 0 multiplied by q of b is equal to 0. So pb would be equal to 0. C option would be the correct option. Now let's go towards next question. Px is equal to, this is divided by this, then the remainder is, you need to find out the remainder. So let me write it again. Px is equal to x cube plus 1, and here x plus 2 is equal to 0, and the value of x is negative 2. Let me put it over here. Negative 2, we need to find out the value of negative 2. Okay, so that is x cube minus 2 whole cube plus 1 is equal to 2 2s are 4, 4 2s are 8, negative 8 plus 1 is equal to negative 7. So this is correct option. 2016, this is question number 14 on complete factorization of this. अच्छा जी, तो हमें इसको complete factorize करना है, ठीक है। तो मैं इसमें से negative
यहाँ अगर आप देखें तो 2 and 4 इन द न्यूमरेटर, तो इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, और x and x स्क्वायर इन द डिनोमिनेटर, सो x कैन बी टेकन आउट एज कॉमन। तो हमारे पास यहाँ -2/x ये हमारे पास कॉमन आ गया है, तो यहाँ हमारे पास 1 बच गया है, माइनस एज इट इज़। यहाँ 2 बाहर निकल चुका है फ्रॉम द न्यूमरेटर, 2 वुड बी ओवर देयर, will be the leftover and x would be the leftover. So that is here. कौन सा वाला बनेगा आपका? The first one. ठीक है. Now let's go towards next question on complete factorization of this. Now take out negative b as common, that is y square plus b square. Okay. तो ये आपके पास आ गया है ऑप्शन ए. Now this is question number 16 on complete factorization of this. We get 1 out of them. तो यहाँ आप इसको मिडिल टर्म ब्रेक से सॉल्व करेंगे. ठीक है. सी स्क्वायर यहाँ हमारे पास 2 मौजूद है, 2 इज इक्वल टू 1 इंटू 2. ठीक है. और बीच में हमारे पास क्या है? यहाँ पर कुछ नहीं है, तो 1 मौजूद है. 1 कैन बी रिटन एज 2 माइनस 1. ठीक है. 2 माइनस 1, तो हमारे पास 1 आ गया है. आई कैन राइट इट लाइक दिस. यहाँ मैं ब्रैकेट में लिख दूंगी इंस्टेड ऑफ 1, दिस इज़ 2 माइनस 1. ओके. और यहाँ c आ गया, -2 आ गया. नाउ ओपन इट, c एंड माइनस माइनस प्लस, दैट इज c -2. ठीक है. ये क्या आ गया आपके पास? c यू विल टेक आउट एज कॉमन, c -2 प्लस 1 c -2, दैट इज c + 1 एंड c -2. A option is the correct option. Now let's go towards 2015. ठीक है. यहाँ मैंने ये लिख दिया है आप लोगों के लिए. If a polynomial is defined as px is equal to 12, this is called constant polynomial. ठीक है. ये constant value है, 12 is the constant value. It means that any value of x, any one of the value of x, you will get polynomial. The value of the polynomial is 12. ठीक है. तो किसी भी वैल्यू के लिए, तो यहाँ आप x की क्या वैल्यू रख रहे हैं? 10 रख रहे हैं, और कोई भी वैल्यू रखी जाए तो हमेशा आपके पास 12 आंसर आएगा. तो जब आप p of 10 रखेंगे, दैट वुड ऑल्सो बी इक्वल टू 12. सो योर आंसर वुड बी 12. फैक्टराइज्ड फॉर्म ऑफ दिस, टेक आउट नेगेटिव, व्हाट इट वुड बी 2x. ओके. एज कॉमन, व्हाट इट वुड बी 3x माइनस 2, 5 आर 10. तो ये कहाँ आ गया? दिस इज हियर. बी ऑप्शन वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ फैक्टर ऑफ. इसके फैक्टर्स निकालने हैं. एक्स स्क्वायर ले लिया तो x + 2 एंड +1 x + 2, बोथ आर कॉमन, सो टेक आउट एज कॉमन x + 2 एंड x स्क्वायर +1. ओके. तो एक आपको बताना था, तो इनमें से कोई एक आपके पास कहाँ मौजूद है? x + 2 यहाँ मौजूद है. ओके. इफ़ द एक्सप्रेशन दिस इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, द वैल्यू ऑफ b इज़. अब आपको इसको परफेक्ट स्क्वायर बताना है, तो मैं इसको परफेक्ट स्क्वायर फॉर्म में लिख लेती हूँ. 2a स्क्वायर. ओके. और यहाँ आपका आएगा b आएगा. ठीक है. b की वैल्यू आएगी यहाँ a की वैल्यू a स्क्वायर. आप ऐसे कह लीजिए कि x स्क्वायर -2xy + y स्क्वायर. ठीक है. a मौजूद है तो हम x और y करके इसको लिख लेते हैं. x स्क्वायर -2xy + y स्क्वायर. ओके. तो मुझे b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ठीक है. तो ये आ गया हमारे पास प्लस, यहाँ आपके पास b की वैल्यू निकालनी है ना, तो आपके पास ये प्लस में आएगी, और आपको यहाँ b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. ओके. b की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. अब आप ज़रा यहाँ सोचें कि b की वैल्यू आपके पास क्या आ सकती है. अगर मैं इसके अंदर -4 पुट करती हूँ तो व्हाट इट वुड बी. अगर मैं यहाँ -4 इस जगह -4 और b की जगह पे -4 रखूँ तो दैट वुड बी --+4 हो जाता है. लेकिन यहाँ आपके पास -+2 4 8 बनता है, जबकि यहाँ आपके पास 4a स्क्वायर. ठीक है. तो -2 रख के देख लेते हैं. इफ़ आई विल पुट -2 ओवर हियर एंड इंस्टेड ऑफ b -2, बाहर माइनस है, इधर प्लस है, तो ये क्या बनेगा? -+2 इधर आएगा, और -+2 2 4 स्क्वायर, 4a स्क्वायर. लेकिन यहाँ तो नेगेटिव लगा हुआ है, सो आई विल पुट 2 ओवर हियर नाउ. तो अगर मैं 2 रख दूँ तो यहाँ अगर मैं 2 रख देती हूँ और यहाँ पर भी 2 रख देती हूँ, तो व्हाट इट वुड बी, दैट इज़ +-2 इधर आएगा, एंड दैट वुड बी 4a स्क्वायर -4a स्क्वायर. तो 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन.
तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 2 होगा। इसी तरह से आपको चेक करना है। 2014 ऑन फैक्टराइजिंग दिस वी गेट 1 आउट ऑफ them। तो यहाँ आपको ये नज़र आ रहा है, हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अगर मैं इसमें से कॉमन लेती हूँ तो दैट वुड बी 3a, 1 माइनस 3 2s are 6a प्लस 3 3s are 9a स्क्वायर। लेट्स सी वेयर इट इज़। दिस इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, ठीक है। द फैक्टर्स ऑफ x प्लस 1 दिस, तो ये आपका डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स है, यहाँ स्क्वायर लगा लीजिए। यू कैन राइट इट लाइक दिस, x प्लस 1 माइनस 1 एंड x प्लस 1 प्लस 1, ओके। तो दैट वुड बी कैंसल्ड एंड दैट इज़ x प्लस 2। तो आपके पास x एंड x प्लस 2, बी ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नाउ लेट्स गो टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। वन ऑफ द फैक्टर, एक फैक्टर आपको निकालना है। तो एक्स स्क्वायर लेट्स टेक आउट एज कॉमन, दैट इज एक्स प्लस 1 एंड माइनस 1 एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 एंड एक्स प्लस 1, ठीक है। तो अभी भी आपके पास x प्लस 1, इसको भी ओपन कर लेते हैं, दैट इज x माइनस 1, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स फार्मूला अंदर लगाना होगा इसे, डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर फार्मूला। तो x माइनस 1 x प्लस 1 एंड x प्लस 1, तो आपके पास इसमें से कहाँ मैचिंग है, b इज़ द मैचिंग, ठीक है। तो नेक्स्ट 2013 ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ दिस, ओके। सो हाउ विल यू सॉल्व दैट। अब इसके लिए थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। अगर आपने गलती कर दी और यहाँ डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर फार्मूला लगा दिया तो दैट वुड बी रॉन्ग, ठीक है। तो हमें यहाँ लेना क्या है, ज़रा गौर से देखिएगा और समझिएगा। हमें यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक अगर आप देखें तो एक फार्मूला यहाँ ए स्क्वायर है, ठीक है, ये मिडिल टर्म है और ये फर्स्ट टर्म, ठीक है, और यहाँ माइनस बी स्क्वायर, यानी बाद में हम डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर्स का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। यहाँ हम इसको क्लोज करते हैं, दैट इज़ 1 माइनस ए होल स्क्वायर फार्मूला ये बन रहा है यहाँ पर, एंड माइनस बी स्क्वायर दैट इज़ इक्वल टू 1 माइनस ए माइनस बी एंड 1 माइनस ए प्लस बी, ओके, दैट इज़ द फर्स्ट वन, ठीक है। द पॉलिनोमियल दिस इज़ डिविजिबल बाय, हमें देखना है कि ये इसको डिवाइड करता है कि नहीं करता, ठीक है। तो अगर ये इनमें से किसी से भी डिविजिबल होगा तो हम इसको पहले पॉलिनोमियल को लिख लेते हैं। सबसे पहले ये काम किया करें कि इसको पॉलिनोमियल फॉर्म में लिख लें, पी एक्स इज़ इक्वल टू दिस एंड नाउ आई एम गोइंग टू पुट द वैल्यूज़। ये उसे फैक्टर्स दिए हुए हैं, एक्स, एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, ठीक है। इनमें से कोई एक इसका फैक्टर है, ठीक है। तो हम इसको कैसे कर लेंगे, अगर मैं इसके अंदर हमारी वैल्यू यहाँ पर इक्वल टू 0 आनी चाहिए, ठीक है। रिमाइंडर वुड बी 0। डिविजिबल का मतलब है कि ये इनमें से कोई भी एक इसका फैक्टर है, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ पर अगर मैं इसको x इज इक्वल टू 0 रख दूँ तो x की वैल्यू क्या है, 0 है। लेट मी पुट इट ओवर हियर, 0 माइनस 0 प्लस 1, नो दिस इज इक्वल टू 1, कैन शुड बी इक्वल टू 0। तो ये आपका 0 ऑफ द, ये इससे डिविजिबल नहीं है, ये इसका 0 पॉलिनोमियल नहीं है। नाउ टेक आउट फ्रॉम हियर, x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा। इफ आई विल पुट 1 ओवर हियर, 1 माइनस 2 प्लस 1, तो 1 इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दैट दिस इज द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। बाकियों को फिर चेक करने की ज़रूरत नहीं है। द ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल 3x प्लस 1 अपॉन 3, लेट मी राइट इट लाइक दिस, 3x प्लस 1 अपॉन 3, पुट these values, by putting these values, -1 रखें तो देखें क्या होता है, -1 प्लस 1 अपॉन 3, दिस इज -3 प्लस 1 अपॉन 3, ठीक है। तो ये 0 ऑफ पॉलिनोमियल नहीं हो सकता बिकॉज दैट इज 3 3s are 9 प्लस 1 अपॉन 3 विच इज़ इक्वल टू -8 अपॉन 3, नॉट इक्वल टू 0। तो ये तो नहीं हो सकता है। p of -1 is not the 0 of the polynomial। now -1 upon 9 पुट करके देख लेते हैं, which is equal to 3 of -1 upon 9 and plus 1 upon 3, ठीक है। तो 3 3s are 9, that is -1 upon 3 plus 1 upon 3 can be cancelled is equal to 0। तो ये आपके पास जो है वो 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है, या फैक्टर ऑफ द, ये जो आपके पास आएगा, फैक्टर तो नहीं, यहाँ आप इसको 0 ऑफ द पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। 2012
On factorization of this and this, let me take out 2 as common, x plus y minus x plus y, ठीक है, इसमें से इसको कॉमन ले लीजिए, तो दैट इज x plus y and this is 2 minus 1 will be equal to 1 x plus y. This is here, okay, यहाँ से आपके पास 1 आ जाएगा, तो this is x plus y. On factorization of this, तो difference of 2 square के लिए आप कर लें 2b whole square minus 1 square, 2b minus 1 and 2b plus 1, कोई भी पहले कोई भी बाद में लिखा जा सकता है. अच्छा, इसको अब हम मैनिपुलेट करेंगे तब हमारे पास जो है वो आंसर ठीक आएगा. यहाँ से मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ, ठीक है. यहाँ से अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो क्या करना होगा, मुझे दोनों को 2 से डिवाइड करना होगा, ठीक है. यहाँ से मैंने 2 कॉमन निकाला. जब मैं 2b/2, असल में कॉमन लेने का यही मतलब होता है कि हम सारे फैक्टर्स को उस नंबर से डिवाइड कर देते हैं, तो दैट वुड बी 1/2. और यहाँ से भी अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो दैट इज़ 2b/2 माइनस 1/2. दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 2 यहाँ आ गया, 2 विल बी कैंसल्ड, तो दैट इज़ b plus 1/2 and 2 दैट वुड बी कैंसल्ड, b minus 1/2 और 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दैट इज़ 4b plus 1/2 and b minus 1/2. डोंट गेट कन्फ्यूज्ड. अगर आपका आंसर ये भी दुरुस्त है जो आपने पहले निकाला था, दिस आंसर, सॉरी फॉर दैट, आपका आंसर ये वाला भी दुरुस्त है, लेकिन आपने इसको मैनिपुलेट करके करेक्ट आंसर यहाँ से चूज़ करना था, तो इसको आपने 2 कॉमन ले लिया. इसलिए कि जब आप इधर देखोगे तो यू कैन सी दैट यहाँ आपके पास फ्रैक्शन में वैल्यू आ रही है, ठीक है. फ्रैक्शन में ये 2 तो हो नहीं सकते थे, इसलिए कि यहाँ 4 आ रहा था, 4 नहीं है हमारे पास. यहाँ अगर हम देखें ये इस जगह पर, तो हमारे पास दोनों में 2b plus 1 और 2b minus 1 आ रहा था, तो ये 2 ऑप्शन तो बन ही नहीं रहते. यहाँ जब आपके पास अपॉन में आ रहा था, मीन्स फ्रैक्शन आ रहा था, तो यहाँ से आपको कॉमन लेना पड़ेगा, ठीक है. तो यहाँ 2011 पे आ जाते हैं फैक्टराइज्ड फॉर्म. यहाँ से मैं कॉमन निकालती हूँ -2x, दैट इज़ 3x minus 5. Okay, so that is here B part. The remainder of this is, अब ज़रा इसको गौर से देखें. Actually this is px, okay, and this is your x minus a, okay. और आपने करना क्या, डिवाइड किया x minus a, तो मुझे यहाँ से ये उठाना है x minus a and दिस इज़, पहले तो मैं लिख लेती हूँ व्हाट इज़ px जो है वो मेरे पास x plus 1 है, ठीक है. ख्याल रखिएगा ये बिल्कुल डिफरेंट टाइप क्वेश्चन इन्होंने दे दिया है, थोड़ा सा लॉजिकल है, सो फोकस ऑन इट. अभी आगे भी एक क्वेश्चन इसी तरह का आएगा जिसमें ऐसे डिवाइड का सिंबल होगा, ठीक है. तो इसको हम px कर देंगे, और ये जो आपके पास मौजूद है, लेट मी रिमूव फ्रॉम, अच्छा, ये अब आपके पास जो है वो x minus a x minus 1 के बराबर है, तो हम x minus a को इक्वल टू 0 रखते हैं, तो x minus 1 को इक्वल टू 0 रखेंगे, x इक्वल टू 1. ओके, तो रिमाइंडर मुझे फाइंड आउट करना है, तो आई विल पुट p of 1 इज इक्वल टू 1 plus 1 इज इक्वल टू 2 इज योर डिवाइडेड बाय दिस इज 2, ठीक है. तो ये रिमाइंडर आपको दिया हुआ है, r की वैल्यू है, ठीक है, और दिस इज x minus a एंड दिस इज px, ठीक है. तो देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x minus 1, ठीक है. तो हम 1 by 1 हर पॉलिनोमियल को, ये पॉलिनोमियल्स दिए हुए हैं, इनको चेक करते जाएंगे. लेट्स चेक ईच ऑफ 1, ठीक है. तो अब हम यहाँ लिखते हैं x minus 1 इज इक्वल टू 0, तो दैट वुड बी x इज इक्वल टू 1, ठीक है. 1 by 1 हम चेक करते हैं. px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2, ठीक है. अगर मेरे पास रिमाइंडर यहाँ पर एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब है कि मेरे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए, ठीक है. तो यहाँ अगर मैं p ऑफ 1 रखती हूँ तो दैट वुड बी 1 plus 2 plus 2, इट्स नॉट इक्वल टू 0, लीव इट एज इट इज़. अब आप px दूसरी वैल्यू ले लीजिए, दिस इज़ x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1, लेट्स पुट द वैल्यू 1 ओवर हियर. यहाँ पर भी चेक कर लेंगे क्या एग्जैक्टली ये पॉलिनोमियल डिविजिबल है x minus 1 से या नहीं है. तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आना चाहिए. 1 plus 2, ओके, माइनस 1, सो दैट इज़ 2 plus 1 3, 3 minus 1 2, नो, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है. तो ये भी नहीं हो सकता. अब हम तीसरा पॉलिनोमियल ले लेते हैं. दिस इज़ x इज इक्वल टू px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1. व्हाट इट वुड बी,
यहाँ पर भी मैं P1 अगर यहाँ रख देती हूँ तो दैट इज़ इक्वल टू 1 प्लस 2 प्लस 1, नो नॉट इक्वल टू 0, ऑल आर adding. So the last one let me put here. Okay, तो x स्क्वायर में आपका 1 आ गया है, प्लस ये 2 आ गया है, माइनस 3. येस, 3 माइनस 3 इक्वल टू 0. ठीक है, तो दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. ऑन फैक्टराइजेशन ऑफ c स्क्वायर माइनस d प्लस 2 होल स्क्वायर, दिस इज डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर. आई कैन राइट इट लाइक दिस, c माइनस d प्लस 2 and c plus d plus 2. Okay, so let me write it like this. क्या बन गया ये, c minus d minus plus minus 2 and c plus d plus 2. तो आप इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? द फर्स्ट वन, दिस इज़ द ऑप्शन 2010. Now we have completed 2002 to 2024 and Allah Hafiz.